So it is a hexacarbonyl manganese 1. Okay, so let us see. So according to the oxidation method, what we need to do, we need to first calculate the oxidation state of central metal ion. And if you will see here, CO is a neutral ligand, right? So the charge and the coordination sphere will directly come onto the central metal ion. So what will be the oxidation state of manganese? It will be +1. And since manganese is having the electronic configuration D5S2, neutral manganese की बात कर रहा हूं मैं, D5S2, right? Then in that case, the total number of electron available in the outer valence shell is 7. And the moment it will take one electron as a positive charge, the remaining electron will be available will be 6. That's why I have written manganese +1 6 electron. And how many number of ligands are there? 6. And one CO will provide 2 electrons. So 6 CO will provide 12 electron, and after adding some we will get it 18 electrons. So in short, this particular species follow the 18 electron rule and it is stable in nature. Okay, chaliye, now we will do the same practice with other route, and that is called neutral method. Now see, in this case we will use the metal or ligand or the charge as it is. For example, manganese is a central metal, so the outermost valence shell is having, just now I talked about, total number of electron will be 7. Okay, and how many CO? 6 CO. So total electron contributed by the CO will be 12. So total ho gaya 19. But here there is a plus charge on the coordination sphere. So whatever the charge will be there, just opposite of that we used to prefer. So if it is plus, then we will write it -1. So it is 18 electron. Okay, so through both the calculation we got the same answer. Now let us move for some other example, that is eta 5 CP, C5H5 को बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल, या फिर CP के एब्रिविएशन से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, Cr CO का होल साइज -1. Okay, so let us start now. If you will do through oxidation method, then you need to calculate the oxidation state of chromium, है ना? So what would be the oxidation state of chromium? It will be 0. How come? Because if you will remember, CP will provide -1. बात की थी ना इसके बारे में. CP will provide -1 plus X plus 0 is equal to -1. तो -1 आप जब बाहर राइट हैंड साइड में लेंगे तो क्या आएगा? X is equal to -1 plus 1. So X is equal to 0. So basically the oxidation state of the chromium in the given compound is 0. So chromium 0 means 6 electron. कैसे होता है? You know very well, right? D5S1 के हिसाब से चलाएंगे हम इसे. ठीक है, चलिए. अब how many number of CO is there? 3, and one CO will contribute 2. So total 6 electron will be contributed by 3 carbonyl ligand. 6 हो गया. Now see, eta 5 C5H5, right? As I told you, the number of hapticity belongs to the number of electron contributed by that particular ligand. So here the hapticity is 5. So 5 electrons are definitely going to share by C5H5. And since we are preferring here the oxidation method, so we need to take care about the charge available on the ligand as well for the contributing the electron. So 5 electron from C5H5 and 1 charge is available, so total 6 electron. So how many it will come? It will come 18 electron. Let us do the same practice through neutral method. Chromium outermost 6, 3 CO again 6, and eta 5. So total number of electron 5, and the charge available on the coordination sphere is a -1. So you will add it 1 electron, and in that case again you will get it 18 electron. ठीक है? So I have shown both the way to calculate the 18 electron rule. But if this question is going to become in the exam, please prefer only one method in which you are feeling comfortable. In a usual practice, neutral method is quite
easier to understand and quite easier to apply, but it all depends on you, as I told you earlier. चलिए आगे बढ़ते हैं. So there are so many other examples. I have written it here. Few are very popular. For example, ferrocene. Let us see here. Now see eta 5 C5 H5. Let us do with the what you call the neutral method. So C5H5 5 electron, 2 C5H5 means 10 electron. ये देखिए यहाँ पे 10 electron लिया है मैंने. ठीक है. Now Fe, how many electrons are available in outer valence shell? 8. FeCO(ni) चलता है ऐसे ही तो. अच्छा अब देखिए, now it will be 10 and 8, 18 हो गया यहाँ पे. ठीक. न्यूट्रल मेथड से करेंगे, सिंस 1 Cp will provide -1 charge, so 2 Cp will be -2, so the oxidation state around the iron will be +2. so now the available valence electron will be 6 electron. ये देखिए 6 electron हमने लिखा है, and the electrons going to be contributed by the ligand system will be 6. Why? Because here we will add up the charge available on the ligand also. So C5H5 कितना देगा? 5, and there will be a 1 negative charge available on the ligand system. So we will add that particular electron, and now the total number of electron contributed by the ligand will be 6. And here how many Cp are there? 2. So total number of electron contributed by Cp will be 12. So now their sum will be 18. ये ferrocene है. The similarly you can apply with FeCO whole twice and Cn whole for 2 minus. मैं सबसे पहले न्यूट्रल मेथड पे फोकस करूंगा. So let us start. Fe outer valence 8 electron. ये देखिए मैंने 8 electron लिखा है. CO again neutral, 2 electron donor, and number of ligands available 2. So 2 multiplied by 2, 4. Right? Cn will use to provide 1 electron here, and that's why we have written 4 multiplied by 1. यहाँ पर charge को count नहीं करेंगे, since we are working on neutral method. We don't consider the charge contribution on ligand in case of neutral method. We always prefer the charge in case of oxidation method. Okay, so now, and the available charge on the coordination pair is 2 minus. ये देखिए, so we will add these 2 electron. Now add it, 18 electron हो गया. ठीक है. The moment we shall do this practice along with the oxidation method, so here the oxidation state of iron will be 2. So in that case, outer valence electron 6, 4. Here you see cyanide contribution is 8, because remember 1 electrons are going to be contributed by Cl, and moreover than that, one more charge is available on particular ligand also, right? So 4 charges will become. That's why we have contributed here 8, and here sorry, written I'm not written here. Again we will write it here 8 4 12. 8 4 12 18. Okay, that will be 8 electron. See here 2 negative charges are available, right? And we are not going to consider it. Anybody can tell me why? बताइए भाई. Method. Method A. Because we are considering the Fe+2 state. नहीं, but Fe+2 करते तो हो जाना चाहिए था फिर तो. Because in oxidation state, at last we are not adding the charge. No, oxidation state में तो हम चार्ज ऐड करते हैं बेटा. नहीं चार्ज ऐड करते हैं. नहीं सर, नहीं करते. क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ऑलरेडी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लिया है. हाँ, चलिए खैर सही है. अब इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ क्यों नहीं करते. अच्छा चलिए, मैं क्या करूंगा, जैसा उसने बोला अभी बोला कि already we have taken into the consideration in case of iron oxidation state, then why we need to add up one more time?
सेम चीज कर रहे हैं ना, हम क्या कर देते हैं कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट को काउंट कर लेते हैं थ्रू द चार्ज अवेलेबल ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, देन व्हाई इट इज नीडेड टू अगेन ऐड अप द चार्ज अवेलेबल ऑन द कोऑर्डिनेट। देखिए सीधा सा रूल ये है कि अगर आपका कंपाउंड न्यूट्रल हो चुका है, न्यूट्रल मतलब समझ रहे हैं, यहां पर आपने आयरन का कितना लिया, +2 लिया ना, CO कुछ देगा नहीं, और फिर साइनाइड के आपने कितने लिए, -4, 4 है ना, तो आपने यहां पर लिया। अब देखिए यहां पर कितना आ रहा है, +2 आ रहा है, यहां पर कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। आप इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, मैं लिखूं या समझ रहे हैं आपको, वेट अ मिनट। देखिए आयरन का चार्ज अवेलेबल अभी हमने काउंट किया, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +2, और एक साइनाइड -1, तो 4 साइनाइड क्या होंगे, -4। नाउ देखिए कार्बोनिल का कंट्रीब्यूशन तो होता नहीं, तो मैं उसे 0 लिख रहा हूं, और फिर हम मूव करते हैं साइनाइड की तरफ। साइनाइड के केस में कितना होगा, यहां पर होगा -4। देखिए मैं पैरेंथेसिस के अंदर लिख रहा हूं। अच्छा, once you will open the parenthesis, what it will come, 2 -4, and finally you will get -2. अच्छा, so by default you come across that once you have taken the charge on iron, yeah, once you have calculated the oxidation state of the central metal ion, by default you have add up all the charge available on the system. That's why we do not do this practice twice. ठीक है, अब देखिए -2 आपका आया और -2 ही चार्ज तो है, देखिए -2 चार्ज ही तो अवेलेबल है इसके ऊपर, है ना, यानी कहीं ना कहीं ये -2 चार्ज आपने यहां पर या ओवरऑल विद इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर काउंट कर लिया है, इसीलिए हम दोबारा नहीं करते। अच्छा, जस्ट इन केस पूरा सिस्टम न्यूट्रल हो जाए और उसके केस में आपको काउंट करना पड़ जाए तो क्या होगा, याद रखिएगा, अगर कोई भी लीगेंड सिस्टम के थ्रू पूरा मेटल आयन आपका ये है क्या नाम, न्यूट्रल है, उस केस में चार्ज को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन मेथड में, ये याद रखिएगा। मतलब यहां पर देखिए आयरन +2 आ रहा है, दैट इज ओके, बट +2 कैसे आ रहा है, क्योंकि आपने इस चार्ज को भी काउंट किया है। लेकिन सपोज करिए कुछ ऐसा होता कि जैसे FeCO का होल 5 -1 होता है ना, तो Fe के केस में अभी आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8, CO 10, 8 हो गया, और -1। अभी आयरन की मैं बात करूं तो आयरन के ऊपर चार्ज क्या आ रहा है, या तो आप माइनस को काउंट करके आयरन को काउंट कर लीजिए, और नहीं कर रहे हैं तो फिर ठीक है, कोई बात ही नहीं, Fe -1 के हिसाब से नाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड विल बी 9। चले खैर, अभी मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं देने वाला हूं। रियो का भी ये रीनियम का भी सेम होगा। देखिए यहां पर भी चार्ज के बारे में आया तो A लिखा है मैंने, एक्चुअली दैट इज 0, ठीक है। सो एंड यहां पर देखिए प्लस चार्ज है, तो यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, -1, न्यूट्रल मेथड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने किसी बुक से लिए हैं। बुक क्या, मिसलर एंड टार एक बुक है, आई डोंट नो आप पढ़ते हैं या नहीं। one very beautiful book is there, and that is written by Missler and Tar, ये उसी का न्यूमेरिकल लिया है मैंने। So what do I suggest, that you take a screenshot or you just write it down here, and we will look that whether means you need to solve these questions at your own level, and if there will be a difficulty we will look it out, ठीक है। तो पहला एग्जांपल था FeCN होल 6 3 minus, then eta5C5H5NiNO has a linear NO। मैंने बोला था दो तरीके के NO हैं, one is a bend and another is a linear, and one will provide the number of electron 3, however another will provide the number of electron 1। So that's why we need to mention that what particular orientation of NO used to have after the coordination, because depending upon their nature of coordination their number of electron contribution are going to be change, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा। आगे बढ़ूं, 2 मिनट दे रहा हूं मैं, फटाफट लिख लीजिए।
चलिए अच्छा, देखिए ये एक चार्ट, इससे पहले मैंने ये चार्ट बनाया था जिसमें काफी चीजें सेग्रीगेटेड थी. नाउ टू मेक इट इजियर I have club up all the contributions of ligand depending upon their electron and peculiarities. ठीक है, चलिए. तो न्यूट्रल लिगेंड अगर आए तो केवल आपको ये देखना न्यूट्रल लिगेंड है क्या. अगर न्यूट्रल है और टर्मिनल का न्यूट्रल है, टर्मिनल और ब्रिजिंग में मान के चलता हूं आपको आता होगा. चलिए मैं बता देता हूँ, नहीं आप मुझे गाली देंगे बाद में. देखिए देखिए ये मैंने एक इनकम्प्लीट सा स्ट्रक्चर बनाया है. नाउ फोकस ऑन एक्स. ये जो x है, दिस x इज पर्टिकुलरली फ्लैंक्ड इन बिटवीन ऑफ द टू मेटल सेंटर, mm के बीच में ये एग्जिस्ट कर रहा है. सो दिस पर्टिकुलर x विल बी कॉल्ड एज ब्रिजिंग लिगेंड. क्लियर है? However, if you will see this particular ligand y, it is only been connected with one metal center. That's why it will be called as terminal. अच्छा, क्लियर है ना? अब याद रखिएगा, this bridging will be represented, since it is attached with 2, so it will be represented as mu2. अब सपोज करिए मैं एक और मेटल सिस्टम बनाता हूं यहां पे, and these ligand x is attached with M. Now if you will see, this X is flanked in between of the three metal center, ये और ये. So now you will write it as mu3. Clear है? So mu will be used to notify the bridging system, and this 3 or 2 represent the number of metal center available with which the ligand has been coordinated. Clear है ना? So I guess now it will be very much clear to you what is terminal and what is bridging. Bridging के केस में आपको याद रखना होगा, it will be flanked in between 2 or more than 2 metal center. In case of terminal, it will only be coordinated with 1 metal center. That's it. अच्छा. If the ligand is neutral and it is terminal nature, then the number of electron contributed will be 2. Clear? And if the ligand is anionic terminal, then again the number of electron contribution is 1. अच्छे से समझ लीजिएगा, anionic terminal will provide 1 electron. Anionic terminal will provide, पहले देखिए मैंने केवल टर्मिनल के बारे में बात की. न्यूट्रल टर्मिनल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन विल बी 2. If it is anionic terminal, the number of electron contribution will be 1. And here the ligands are like chloride, aryl, alkyl, hydride, amine. Amine तो न्यूट्रल हो जाता है, बट लाइक सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन का एक वो हटा दीजिए. तब phosphines, RO minus, ethoxide, ऐसा. ठीक है? Then haptoligand. देखिए haptoligand is quite easy to understand, because here you will focus about the hapticity. जितनी भी hapticity रहेगी उतना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा. देखिए eta2, eta2, eta4, eta1. So whatever the eta is available, it means that that same number of electron they are going to contribute. अच्छा, ब्रिजिंग न्यूट्रल. अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में अंतर समझ ही गए होंगे आप, न्यूट्रल टर्मिनल और ब्रिजिंग टर्मिनल. देखिए ब्रिजिंग न्यूट्रल अगर है, चाहे वो mu2 हो या mu3 हो, the number of electron contribution will be 2. Is that clear? The number of electron contribution will be 2. However, if there will be a bridging anionic, if it is bridging anionic, then in that case it will be 1 electron. दे दिया इसको.
हेलो हेलो, आपको आवाज आ पा रही है? हाँ, माफ करिएगा, बड़ी सारी काम करने पड़ते हैं घर में रह के क्लास लेने पे। चलिए खैर, तो ब्रिजिंग न्यूट्रल मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ब्रिजिंग एनायनिक में देखिए, यहाँ पर याद रखिएगा लोन पेयर नहीं होना चाहिए, तभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी होगा 1 इलेक्ट्रॉन। अभी ब्रिजिंग एनायनिक विद 1 लोन पेयर हो तो याद रखिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 3। अगर 2 लोन पेयर है तो ये 5 इलेक्ट्रॉन भी कंट्रीब्यूट करता है। देखिए इसके केस में आपको देखना पड़ेगा, आप ये बस कंफ्यूज होइएगा, ये μ2 है, यानी नंबर ऑफ मेटल सेंटर अवेलेबल विल बी 2 एंड हियर नंबर ऑफ मेटल सेंटर अवेलेबल्स आर 3, इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन विल बी 5। ठीक है, अदरवाइज 3 है। Cl पे 2 लोन पेयर अवेलेबल है तो 4 इलेक्ट्रॉन वहां से और 1 इलेक्ट्रॉन उसको खुद चाहिए ऑक्टेट पूरा कंप्लीट करने के लिए, तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे काउंट किया करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिजिंग एल्काइन अगर है तो एल्काइन में हाउ मेनी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आर अवेलेबल? 2 डबल बॉन्ड 1 सिंगल बॉन्ड, तो जितना डबल बॉन्ड है सब ओपन होता है, या ये कह लीजिए सब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है, सो इट इज 4 इलेक्ट्रॉन। NO लीनियर 3 इलेक्ट्रॉन, NO बेंड 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना? ये मतलब रट्टा मान लीजिए। आई थिंक दिस क्वेश्चन हैज कम इन CSIR 2012। उसका क्वेश्चन पूछा था, इन दैट इट वाज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद रिस्पेक्ट टू 18 इलेक्ट्रॉन रूल, but they have not mentioned that whether NO is linear or bent. They have directly asked that the following species which have NO linear will follow 18 इलेक्ट्रॉन। तो अभी उसमें ना आपको दोनों ही पॉसिबिलिटी से कैलकुलेशंस करनी थी। दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए, कार्बीन अगेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड कार्बाइन विल बी 3 इलेक्ट्रॉन। देखिए इसे मेमोराइज करने के अलावा कोई तरीका नहीं है, और वंस you will start doing a practice at your home, means you will be able to memorize very easily rather than to mug up this particular slide. केवल अप्रोच याद रखेगा कि ब्रिजिंग एनायनिक अगर आ रहा है और एक लोन पेयर है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन विल बी 3. However, if the number of available lone pairs are 2 and it is associated with mu3 prospect, then the number of electron will be 5. Alkyne ब्रिजिंग है तो 4, कार्बिन है तो 2, कार्बाइन है तो 3, NO लीनियर 3, NO बेंड 1, राइट। बाकी हेप्टिसिटी जैसी रहेगी उतने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होंगे, और ब्रिजिंग न्यूट्रल है तो 2, और अगर ब्रिजिंग एनायनिक है तो 1, कोई मतलब अंतर नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए ये देखिए क्वेश्चन है, जो पहला वाला क्वेश्चन है ए जो मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन ISC में आया था आई गेस 2008 में। उनके जो प्रीलिम एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन आया था। डिक्टो यही था, बस लैंग्वेज मैं अभी इजी कर रहा हूँ, वहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा मुश्किल थी एक्चुअली। वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब इफ यू आर हीटिंग द, सॉरी आंसर ही बता दिया मैंने, इफ यू आर हीटिंग अ कॉम्प्लेक्स, है ना, then suppose the earlier the compound was 16 electron rule, after heating it has achieved 18 electron rule. Now there will be a presence of arene and phosphine group. Now find out the geometry of that particular compound. तो ऐसा करके क्वेश्चन था, काफी घुमाया था, बट यही क्वेश्चन था एज इट इज। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मैंने पूछा है, द फॉलोइंग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स आर स्टेबल and has second row transition metal at its center. Find out the oxidation state. Clear है question? The following organometallic compounds are stable, पहले ही बोल रहा है, and has a second row transition metal at its center. Find out the oxidation state. So in short, what it is expecting that you need to find out first the nature of metal center, and then you calculate the oxidation state and make sure that your compound is stable. सेकेंड रो से है तो सेकेंड रो आपको पता ही है ट्रांजिशन एलिमेंट की क्या होती है। ये होमवर्क करेंगे या मैं करूं? देखिए मैं यहाँ पर आंसर बता देता हूँ। पहला होगा रुथेनियम, रुथेनियम का ही कंपाउंड था ये। दूसरा होगा मॉलिब्डेनम, फिर पैलेडियम, फिर मॉलिब्डेनम, फिर से सेकेंड रो ट्रांजिशन मेटल में। देखिए मैं तुक्का तो नहीं बोलता, बट
जो सबसे ज्यादा ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री में एक्सप्लोर हुआ वो मॉलिब्डेनम ही है, यानी क्रोमियम के नीचे वाला। बाकी जो भी मेटल है, या फिर उधर चले जाइए जो निकल के नीचे वाले हैं, यानी पैलेडियम, प्लैटिनम, ऑस्मियम, इरिडियम, ये सब वो अदरवाइज ज्यादा एक्सप्लोर हुए नहीं है। तो जब आपको कुछ भी समझ नहीं तो अंधी मारनी है, तो फिर तो कैसे भी ऐसे मारा करिए अंधी, ठीक है। लेकिन आई वुड से कि आप इसे ड्रा कर लें या फोटो खींच लें और इसको एक बार करिएगा। आंसर तो आपको मैंने बता दिए, बट करिएगा जरूर। ये बहुत अच्छा है। अब सोचिए दिस क्वेश्चन, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन 2 साल पहले CSIR में पूछा गया, ये मॉलिब्डेनम होगा, इसमें ये बॉन्ड टूटता था, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन था वो। तो जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए अच्छे प्रैक्टिस है। दीज सीम्स डिफिकल्ट बट दे आर नॉट डिफिकल्ट एट ऑल इफ यू नो द बेसिक्स, ठीक है। इसका क्लिक कर लीजिएगा। आंसर भी मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। आंसर ये है, पहले का है रुथेनियम, देन मॉलिब्डेनम, देन पैलेडियम, देन मॉलिब्डेनम, ठीक है। तो मैंने आपको 2 प्रॉब्लम सॉल्विंग्स दी हैं, एक में आपको 18 इलेक्ट्रॉन देखना है और एक ये। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कुछ एक एग्जाम्पल है, हाँ टफेस्ट एग्जाम्पल है। ये एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर इलियास एंड BD गुप्ता फ्रॉम IIT दिल्ली। मैंने उनकी स्लाइड से ये लिया है। और ये एग्जाम्पल थे आई थिंक कार्बेट्री की बुक में। So this particular example, if you will ask, I have taken from Carbatry, and this particular examples from the slide I have been taken from Ilyas. पता नहीं आपको जानते होंगे, now he has retired actually. तो चलिए खैर वो सेकंड भी है। देखिए अब देखिए ये एक एग्जाम्पल मैं सॉल्व करूंगा, बाकी आप अपने लेवल पे सॉल्व करिएगा बाद में। देखिए यहाँ पर रुथेनियम के आउटर, देखिए मैं न्यूट्रल मेथड को ही प्रिफर करता हूं। आई डोंट लाइक ऑक्सीडेशन मेथड बिकॉज इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग समटाइम, ठीक है। सो व्हाटएवर the complex I am going to solve, by default you take it into the consideration that I am preferring neutral method। चलिए अब देखिए रुथेनियम किसके कैसे होता है, FeCO9 RuRHPD, है ना। सो बाय डिफॉल्ट Fe के नीचे आ रहा है। वी डोंट नो एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट वी केम टू नो दैट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इन द रुथेनियम विल बी 8। तो मैंने लिख दिया 8। अब देखिए Cl टर्मिनल है, एनायनिक लिगेंड है। आपको अभी मैंने बोला एनायनिक टर्मिनल विल कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 1। Now the next ligand which is attached with the ruthenium is arene या aryl group आप कह लीजिए, but here it has been attached with the electron density. So what I will say that it will be hepto compound, and in this case particularly the hepticity will be 6. So the number of electron contribution will be 6. That's why I have written 6. So देखिए 8 6 plus 1 15 तो हमने अचीव कर लिया। अच्छा हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए यहां तक अगर मैं रुथेनियम का, देखिए मैं पेन उठाता हूं, देखिए जो मैंने लाइन ड्रा की, इसका लेफ्ट हैंड आपने सॉल्व कर लिया, टर्मिनल प्रोस्पेक्ट सॉल्व कर लिया। अच्छा ये कंपाउंड कैसा है, डाइमेरिक है। डाइमेरिक मतलब दो सेम जैसी स्पीसीज आपको दिख रही होंगी। अच्छा whenever there will be a dimeric species, I would better suggest you that if it is centrosymmetric, remember if it is centrosymmetric, then in that case you better try to divide the molecule symmetrically। क्लियर है। सो अगर मैं इसको सिमेट्रिकली बाइसेक्ट करने की कोशिश करूं, सो व्हाट आई वुड प्रिफर लाइक ऐसे बाइसेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस रुथेनियम के पास क्या आया, क्लोरीन, एरिल, ब्रिजिंग Cl। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। दिस रुथेनियम विल आल्सो हैव द सेम टाइप ऑफ लिगेंड वेयर इट विल ऑक्यूपाई द क्लोराइड एनायनिक, हेप्टो and Cl bridging। Is that clear? Up, let us start with this same parameter which we used to apply for the normal cases। तो अब देखिए 1 is okay,
6. Now it is bridging chlorine, and this particular chlorine is flanked with how many number of metal? 2 metals. So the nature of this Cl will be mu2. मैंने लिखा भी है ऊपर, क्लियर है? Now if it will be a mu2, then the number of electron contribution will be how much? 3. तो इसीलिए मैंने यहां पे क्या लिखा? 3. अब देखिए 8 3 1 कितना हो गया? 12 और 6 क्या हो गया? 18. तो यानी ये रुथेनियम 18 इलेक्ट्रॉन है, और सेम चूंकि सेंट्रोसिमेट्रिक डाइमर में दोनों ही रुथेनियम विल हैव 18. ठीक है? अच्छा, मैं इसका भी एक बता देता हूं, बाकी आप अपने लेवल पे सॉल्व करते रहिएगा. अब देखिए प्लैटिनम के आउटर मोस्ट में आपको पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10. अब देखिए, चलिए इस प्लैटिनम का ये भी देखिए सेंट्रोसिमेट्रिक टेट्रामर है. ये कितने प्लैटिनम है? 1, ये 2, ये 3, ये 4. आप चाहे तो इसके 4 हिस्से कर सकते हैं. लेकिन चलिए 1 बाय 1 में से कहता हूं. अब देखिए प्लैटिनम मतलब 10 हो गया आपको. अब देखिए टर्मिनल पे क्या लगा हुआ है? मेथिल लगा हुआ है. यानी R माइनस लगे हुए हैं. ऐसे ही करते थे आप लोग, है ना? तो R माइनस लगे हुए हैं, तो आपको मैंने क्या बोला? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन विल बी 1 इफ इट इज एल्किल. तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन यहां से आ गए, 3. राइट. अब मैंने आपको क्या सिखाया? नेक्स्ट जॉब क्या होता है कि जब भी सेंट्रोसिमेट्रिक डाइमर हो, ट्राइमर हो या टेट्रामर हो, यू ट्राई टू बाइसेक्ट द मॉलिक्यूल इन अ सिमेट्रिक फैशन. और if it is not possible for you to bisect, then you will take only one bridging. If 2 bridging are there between bimolecular, then how many chlorine you are going to use? 1, जैसे यहां पर किया. अब ये देखिए टेट्रामर जैसी कंडीशन है. तो अगेन याद ये रखिएगा कि इसके केस में भी आपको एक ही Cl यूज करनी, क्योंकि 4 प्लैटिनम है ना, तो 4 प्लैटिनम पे एक Cl डिवाइड हो जाती है. तो अब देखिए मैं क्या करता हूं, कोई एक Cl मैं चलिए नीचे वाला ले लेता हूं, ये वाला ले लेता हूं. ठीक है? अब देखिए हाउ मेनी बॉन्ड आर देयर, या मैं आपसे पूछूं दिस Cl इज ब्रिज विद हाउ मेनी मेटल्स. देखिए ये Cl ब्रिज है इस प्लैटिनम से, ये Cl ब्रिज है इस प्लैटिनम से, और ये Cl ब्रिज है इस प्लैटिनम से. So now the number of metal center with which the chlorine is bonded will be 3. So the nature of chlorine will be mu3, and I told you the mu3 Cl where 2 lone pairs are available, in that case the number of electron contribution will be 5. So that's why I have written it here 5. अब ऐड कर लीजिए 10 + 1 11 + 2 13 + 5 18. तो ये प्लैटिनम 18 हो गया. सिंस इट इज टेट्रामर, सो बाय डिफॉल्ट सब 18 होंगे, बट आप चाहें तो अब प्रैक्टिस करते रहिएगा. ठीक है? अब देखिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर आपको करे हैं. जितना डिफिकल्ट हो सकता है मैं वो भी लेके आया हूं यहाँ पर, और आप इसे अपने लेवल पे करेगा. मैंने आंसर भी इसी में लिख ही दिया है, तो इट्स नॉट. अच्छा, एक चीज और कहनी थी. हाँ देखिए, याद ये रखिएगा कि एक मिनट में लिख देता हूं FeCuNi. देखिए 18 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ट्रांजिशन रो एलिमेंट के लिए बहुत ज्यादा फोकस्ड होता है. बाकी के केस में याद रखिएगा 16 इलेक्ट्रॉन चलता है. या ऐसा बोल दूं, द कॉम्प्लेक्स विच प्रिफर द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, in that case the stability used to be defined with respect to 16 electron rule rather than 18 electron rule. ठीक है? क्या कहा मैंने ये बोला कि फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट विल स्ट्रिक्टली फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल टू डिफाइन द स्टेबिलिटी. क्लियर है? However, in case of second row and third row element, the element which used to prefer the square planar geometry, in that case the favorable electronic atomic number, effective atomic number will be 16 as a stable moiety. Clear है? अगर सेकेंड और थर्ड में है और स्क्वायर प्लेनर जैसी चीजें बनाने की कोशिश करें, तो उसके केस में 16 भी स्टेबल होता है. दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल, बट उनके केस में ऐसा रहता है. अब देखिए यहाँ पे FeCuNi Ru, इसका ये मतलब मत समझ लीजिएगा कि वो 18 नहीं बनाते, बना सकते हैं, बट उनके केस में ये भी रहता है. ऑस्मियम, इरिडियम,
एंड प्लैटिनम। अब देखिए, ये आपको पता है सबसे ऊपर वाली कौन सी सीरीज है? फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल सीरीज, या इसको ये 3D है मेटल, है ना? ये कौन से मेटल है? 4D। और ये कौन से मेटल है? 5D। तो रूल ये कह रहा था मैं कि 3D मेटल विल फॉलो स्ट्रिक्टली द 18 इलेक्ट्रॉन रूल and their stability used to be defined with respect to 18 electron. But in case of 4D and 5D, especially ये जो 6 मेटल हैं, इनके केस में if they obtain square planar nature, then their stability will be defined with respect to 16 electrons. जितने रूल सिखाए सब वैसे रहेंगे, केवल यहाँ पर stability 16 इलेक्ट्रॉन से होगी. Especially remember in case of platinum and platinum. अब देखिए यहाँ पर प्लैटिनम का एक एग्जांपल लिया मैंने. ज्योमेट्री अगर मैं बोलूं तो स्क्वायर प्लेनर जैसी दिख रही होगी आपको, 4 ही है, हालांकि इसमें मेटल मेटल बॉन्ड भी है, बट अगर इसको नहीं कंसीडर करता 4 है तो देखिए 16 इलेक्ट्रॉन्स ये स्टेबल है, ये याद रखिएगा. यहीं पर देखिए जब हम प्लैटिनम की बात कर रहे हैं, वो भी प्लैटिनम है, यहाँ पर देखिए 18 इलेक्ट्रॉन आया. क्यों? क्योंकि याद रखिएगा यहाँ पर ज्योमेट्री क्या है? ऑक्टाहेड्रल है. क्लियर है ना? 1 2 3 4 5 6. So every platinum will have 6 coordination number. So the favorable geometry will be octahedral, and in that case the stability used to be defined with respect to 18 electron. तो मैंने दोनों ही एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया. देखिए यहाँ पे रुथेनियम का है, यहाँ पर मैंने रुथेनियम यहाँ पे लिखा हुआ है, and actually it should follow 16, and luckily it is square planar here, but still it is following 18 electron. स्टेबल रहेगा. इसका रीजन याद रखिएगा, बिकॉज इट गेट डाइमराइजेस, सेंट्रोसिमेट्रिक डाइमर बना रहा है, इसलिए 18 पे स्टेबल हो रहा है. ठीक है, चलिए. तो याद रखिएगा, मैं एग्जाम में ये भी पूछ सकता हूँ. इससे पहले जो प्रैक्टिस मैंने आपको दी है उसमें एक कंपाउंड मैंने लिखा है शायद PtCl2NH3 का होल ट्वाइस. तो इस रूल को दिमाग में रखते हुए करिएगा. ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज लिखा है, अंडरस्टैंडिंग द मेटल मेटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन काउंट बिकम इजियर इफ यू कंपेयर एंड सी how the octet is attained by each Cl atom of Cl2. ठीक है, इसके केस में ये सिंपल सा चीज है. जब कोई मेटल मेटल बॉन्ड बनता है ना, तो आपको ये पता ही होना चाहिए कि मेटल मेटल बॉन्ड बन रहा है, मतलब एक्स्ट्रा बॉन्ड तभी बनेगा जब वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, और स्टेबिलिटी अचीव करना है मतलब वो ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे या 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करने की कोशिश करेंगे. तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यू नीड टू सी दैट मेटल मेटल बॉन्ड कहाँ बन रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में लिगेंड पे क्या फर्क पड़ रहा है. ठीक है,